Also, can you guys confirm if you are able to access last lecture's recording? Yes, okay. I'll record it on cloud only. Take. So in last lectures, what did we cover? What all we covered? Did we learn about arrays? Arrays, right? Right. So basically, how was array defined? We defined array by writing a square brackets, right? In this array, can we just write strings or can we write other data types also at once? Other data type be, right? So if I want to put number in it, I can go with number. If I want to put a boolean in it, I can go with a boolean. Tick. All right. Let's say I want to access this last element. How can I access it? Just access it. So if I do a console.log array and inside this either I can write 2 या तो मैं index लिखूंगा, right? Or I can go with array dot length minus 1. Can I? Right? Abhi bhi, if I'm gonna console it, I'm gonna get this thing. Yes? Now quickly tell me, anytime if you are creating any type of array, सबसे पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होने वाला है? वेरी फर्स्ट इंडेक्स 0, 0, right? It's gonna be 0. Let's say I've written array 1 equals to false. And if I print array, क्या array मिलने वाला है मेरे को in console? If I do a print here, what am I gonna get? So this is JS file. Inside JS, I have to go inside array, and in array, I have to go inside string. ये पता है ना कि how you can go inside a directory, right? बस cd लिखो और उस फाइल का नाम फोल्डर का नाम लिखो, ठीक? We'll get inside that. Clear? कैसे you can enter a file folder? If no, then I'll write it in here. Just write cd folder या फिर directory name and do enter. You will get inside. ठीक? cd लिखना, डायरेक्टरी का नाम या फोल्डर का नाम, and you will get inside. ठीक, चलो. तो if I do this array, I'm gonna get an updated array, right? Updated array मिलने वाला है. If I do a node index in it, I'm gonna get the updated array. Clear? And can I run a loop on array? Array पे loops चल सकते हैं क्या? तो let's say कि मुझे हर एक एलिमेंट प्रिंट करना है, तो how can I do it? I can go with a for loop, right? I can go with a for loop where I equals to 0, I is less than array dot length, I plus plus, and inside this I can do a console dot log array I. Will this print each and every element inside that array? सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, राइट? और इतने कम रिस्पॉन्सेज क्यों है? सबको समझ आया? ठीक, तो दैट्स प्रीटी मच इट दैट वी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर. ठीक, आज क्या पढ़ना है? What do we have to study today? Strings, right? तो काफी नया कॉन्सेप्ट है ना? स्ट्रिंग्स पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम? नहीं, नहीं, नहीं. ठीक, तो क्या हम जानते हैं स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? If I write, let's say var str equals to Masai school, is this a string? Is this a string? Right? ये एक string है. What if I write something like this? str2 equals to Masai school. Am I gonna get an error? अगर मैं str2 को print करूंगा तो? Yes, no, yes, no, yes, no. Let's do one thing. Let's print these. If I do a console.log, एक str के लिए, and I'll write a console.log for a str2. So if I do a node index, I'll be getting both the Masai school.
राइट, ये भी मिल रहा है एंड ये भी मिल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ साइजफुल 2। ठीक, ठीक। तो इधर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट बाय दिस थिंग, राइट। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन दिस मैनर, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। एक और तरीका होता है, तो यू कैन गो एंड यू कैन राइट str3 इक्वल्स टू साई स्कूल 3, बट डबल कोट्स के बजाय रादर देन हैविंग डबल कोट्स मैं क्या करूंगा, मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करूंगी। ठीक, मैंने क्या यूज किया, मैंने ये यूज किया, देखा है क्या कभी? नहीं देखा है? ठीक है, तो आज मैं पहली बार आपको दिखाता हूँ। तो वी कैन यूज दिस, राइट। इफ आई गो एंड इफ आई राइट console.log str3 और मैं जाके नोड लिखता हूँ, नोड इंडेक्स जेएस, तो आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी एरर। ठीक, वो सब तो ठीक है। यू कैन, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को यू कैन कॉल इट टेम्पलेट लिटरल्स, राइट। मतलब अकेले तो यू कैन कॉल इट लिटरल्स, बट इसको हम किसी चीज के साथ यूज करेंगे तो यूजुअली इसको टेम्पलेट लिटरली बोलोगे जब भी स्ट्रिंग में। ठीक, आउटपुट इज गोना बी सेम। ठीक, तो आउटपुट सेम दिख रहा है, लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, सब कुछ दो चीजों के अंदर इनक्लोज्ड है, तो क्यों अलग अलग बनाने की जरूरत ही क्या थी? एनी आइडिया? किसी को कोई भी आइडिया सूझता है तो बताओ। नो आइडिया? ठीक है, आई हेल्प यू गाइस गेट एन आइडिया। लेट्स से कि पहले इसके साथ चालू करते हैं। लेट्स से कि स्ट्रिंग के अंदर तो वी कैन राइट एनीथिंग, कैन वी राइट वर्ड्स, कैन वी राइट सेंटेंस, पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट, पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि मुझे कभी ऐसा कुछ लिखना पड़ा, दैट्स अ ग्रेट प्लान। ठीक, अगर मुझे कभी ऐसा कुछ लिखना पड़ा, लेट्स ट्राई टू राइट इट इन दिस वे। पहले सिंगल वे लिखने की ट्राई करते हैं, str, इसको नाम क्या दें, nstr2। ठीक, चलो, इफ आई ट्राई टू राइट इट इन सिंगल कोट्स, राइट, तो दैट्स अ ग्रेट प्लान। ठीक, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि अगर हम पैराग्राफ लिखना चाहे और मान लो उसमें हमने कुछ ऐसा यूज करने का ट्राई किया, तो इट्स गोना गिव अस एन एरर। एंड नाउ इफ आई गो एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट console.log nstr2 to run it, एरर दे रहा है, इट्स सेइंग अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एंड ऑल दैट शिट। ठीक, तो जब ऐसा कुछ होगा तो वुड इट बी बेटर आइडिया कि हम मे बी डबल कोट्स के साथ जाए, राइट, राइट, राइट। तो अगर मैं अभी जाके नोड इंडेक्स करूं अभी, दैट्स ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक, फिर दैट्स फाइन, ये तो सिंगल कोट्स के लिए है, हम सिंगल कोट्स वैसे भी यूज नहीं कर रहे थे। लेट्स से कि हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, आई सेड हेलो। ठीक, बोलो। इफ आई ट्राई टू राइट इट इन अ स्ट्रिंग, लेट्स से where nstr, ठीक, तो आई एम राइटिंग आई सेड कॉमा हेलो वर्ल्ड एंड देन, ठीक। तो समझ आ रहा है कि कुछ डिफरेंट यूज केसेस है, उस वजह से हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बना रखे हैं। क्लियर? तो ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ऐसे ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बट लास्ट वाला जो कोट्स है ना उसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। आई मीन इसको भी यूज कर सकते हो बाकी दोनों सेंस में, ऑफ कोर्स बाय इन ऑल मींस प्लीज यूज इट, बट डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यूजुअली रिप्रेजेंटेशन में डिफर करते हैं ये दोनों। तो इन दोनों के लिए क्लियर है कि व्हाई डू वी यूज डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स, और क्यों दो अलग अलग तरीके बनाए गए स्ट्रिंग के लिए। ठीक, लास्ट वाला जो ये तरीका है ना टेम्पलेट लिटरल वाला, इट्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? लेट्स से आई विल रिमूव दिस,
लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल, राइट, टोटल, राइट, जैसे कल हम प्राइस निकाल रहे थे, है ना, एंड लेट्स से आई हैव अ टोटल प्राइस ऑफ 2000 और मुझे एक सेंटेंस प्रिंट करना है जो करेगा यू गॉट अ टोटल प्राइस ऑफ 2000। ठीक, अगर मैं जाके इसको डायरेक्टली कंसोल कर दूं तो आई एम प्रिंटिंग 2000, राइट। इफ एक बार दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग इनसाइड दिस, इफ आई पुट इट, क्या मेरा काम बन रहा है? मैं ये टोटल प्रिंट कर रहा हूँ, काम चल रहा है, राइट। आई एम प्रिंटिंग अ सोल्यूशन। लेट्स से कि मैंने वेरिएबल को अपडेट कर दिया। इफ आई रोट दिस थिंग नाउ, विल इट अपडेट इटसेल्फ? नहीं करेगा, राइट। तो डू वी नो अ वे टू डू समथिंग लाइक दिस? हम जानते हैं, हम जानते हैं, राइट राहुल, राइट राइट, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, कैन बी। तो आई कैन सिंपली go and write your total is, and I can go with this and I can write total. अभी जैसे जैसे मैं वेरिएबल अपडेट करता जाऊंगा, आई एम गोना अपडेट माय स्ट्रिंग, यस, और I can go with template literals and I can write it inside string only। ठीक, देखो कैसे लिखेंगे। तो I don't need to use double quotes, इसके लिए will be using or literals, and inside this I'll write your total is total. Pick. Let me comment this out and see what happens if I do a clear text. See कि हम वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। If I even update it, no, let's say कि मैंने I picked the for let I equals to 0, I is less than 10, I plus plus, and inside this I'm putting this total, and inside this I can write basic logics too. So I can just add I. Take, if I do a node index, I'll be printing your total is 202, 203, 209. ठीक, so this entire setup is called template literal. You have to initialize the strings with this literals, and inside that if you write this setup, no, ये लिखोगे, inside that you can write any JS conditions, कोई भी variable हो, you can even write conditions in it. What do I mean by condition? Let's say you wanna write total is equals to let me do one thing, यहाँ पे total plus equals to I कर देता हूँ, ठीक। तो total is equals to if it's 2202 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रख दो, printing stuff else nothing, ठीक। So if I write some logic in it and if I do a clear and node index, you'll see it's going nothing for all, 202 आ नहीं रहा है, is that the case? Okay, let me check once again. Let me console total first and we'll see. Right. Index, अच्छा 202 आ नहीं रहा है, wait, why? Any idea why we're skipping 202? Right, हम दो बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक आई प्लस प्लस तो हो ही रहा है, एंड देन वी आर एडिंग टोटल टू इट। तो एक काम करते हैं, इसमें जस्ट 1 प्लस करते जाते हैं, ठीक। आई प्लस प्लस करने के बजाय लेट्स गो विद 1। अभी वी शुड बी गेटिंग इट इन बेटर, ठीक, अभी मिल रहा है। एंड लेट्स अनकमेंट आवर कोड,
and if I do one more index, अभी जब भी it's getting 202 हम लिख रहे हैं printing stuff. क्लियर? तो बेसिकली कहना ये है कि इफ यू राइट दिस थिंग डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस इनसाइड दैट यू कैन राइट अ जेएस लॉजिक स्ट्रिंग्स के अंदर. Clear? Any doubts? Let's say I'm writing a console.log and I'm using literals, right? उसके अंदर I'm saying कि this statement is and dollar curly Sir, braces. can we explain again dollar sign? Yeah, I will, but okay, I will just give me a second. यस, ठीक है. तो लेट्स से कि यू वांट टू राइट लॉजिक अलोंगसाइड योर स्ट्रिंग्स, राइट? तो मान लो इफ यू हैव लेट a equals to 10 and in string you have to write something like this. So a has a value of and then you'll write this. अगर हमें एक साथ वैल्यू प्रिंट करनी है तो यूजुअली हम कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं. यस एवरीवन, क्विकली, right? So if I go with this, I'm going to print a has a value of a, right? But what if we want to write it inside string only? ठीक, अगर string के अंदर लिखना है तो you can directly go with console.log. You'll write literals, right? Inside this you'll write a has a value of dollar sign. It's a syntax, right? Dollar sign and curly braces is a syntax to initiate this thing. और इसके अंदर you can write the logic, right? So you can write the a. Tick. If I do quick run on it, we'll see we are printing the value of 10. Clear? Dollar and all, right? This is just syntax. ये syntax लिखना पड़ेगा so that you can initiate this thing. Inside this, you can go with either true if that is there to just print 10, else you can print false, right? So abhi we have directly written true. It's gonna be printing 10, right? But let's say कि यहाँ पे मैं false लिख दूंगा. So I'll be writing instead. Clear? ठीक. You can't actually. तो अगर आप try करो writing in double quotes or maybe single quotes, that's not gonna work. वो पूरा एक string बन जाएगा. ठीक, इसी वजह से we have template literals for it. Clear? Everyone? तीन अलग अलग तरीके के strings देखे हमने. Any doubts कि when what's the use cases for it? So again, quickly, we had three different types of strings. First one is this, and second one is this. These two are purely based on what you have to write, right? Writing representation पे है, but let's say you have to write some JS inside your strings. String के अंदर ही कुछ JS लिखना है, so you can go with template literals. उसके अंदर dollar and curly brackets. Curly brackets के अंदर जो भी लिखना है, you can go with that. Any doubts till now, guys? कोई doubts template literal में? What is difference between single and double? So if you have to write something like this, right? That's there, right? तो अगर ऐसा कोई string लिखना है तो you can't go with single quotes, right? Single quotes के साथ जाओगे तो this because of this it's gonna give an error. तो उस time पे you can go with double quotes and same thing applies for double quotes also. Where is it in keyboard? Tab के ऊपर दिखेगा ये चीज. ठीक, क्लियर? और कोई डाउट्स टेम्पलेट लिटरल में? नहीं, ठीक है, ठीक है. तो लेट्स से क्रिएटेड दिस और उसके अंदर इफ आई डू अ console.log,
what am I gonna print in line number 47? लाइन नंबर 48 पे क्या प्रिंट होने वाला है? हेलो 20 टाइम्स, ओके, फुल स्ट्रिंग सेम एज कंसोल। ठीक, तो रिमेंबर आई एम यूजिंग डबल कोट्स, राइट? तो दिस इज गोना बी एंटायर स्ट्रिंग, तो जो लिखा है एग्जैक्टली दैट इज गोना गेट प्रिंटेड। ठीक, नाउ व्हाट इफ आई यूज लिटरल्स? लिटरल्स यूज किया तो नाउ I'll be writing hello 20 times, right? If I do a node index, I'll be printing that. Let's say कि इसके अंदर I written this and then write a else a into 3. अभी बता, what am I gonna print? Again hello 20 times or something else? Okay, so some of you are saying hello 20 times and some of you are saying hello 60 times. Let's see. If I do an index, I'm printing hello 60 times. Why? Because flag we checked, इसके अंदर हमने अपना ऑपरेटर लगाया and we checked कि flag is true, तो अभी के लिए it's false। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस कंडीशन के बजाय इस कंडीशन में घुस रहे हैं। We are picking A and we are doing a 20 into 3, that is 60. Clear? Let's keep it that way. And now what? Opposite हो रहा है, तो it's gonna be 20 times. ठीक, तो I hope this cleared any doubt that you guys might have been left with. ठीक, shall we move forward? आगे चले। ठीक, बट ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट होता है। सो इसके बजाय अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे तो जो भी इसमें लिखा है ना एग्जैक्टली वही प्रिंट हो जाएगा, वेरिएबल्स वगैरह कुछ नहीं लेगा, उसको स्ट्रिंग मानेगा, प्रॉपर एंटायर स्ट्रिंग। ठीक, क्लियर? सिंगल कॉमा बोथ, ये दोनों दिस एंड दिस, ये दोनों यू वोंट बी एबल टू यूज इट इन हियर। इसके लिए स्पेशली हमने लिटरल्स बनाए हैं। ठीक, ये स्पेशली इसी के लिए बना। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो guys, let me tell you one thing. If I create a string, right, Masai school, and if I do a console.log str, you guys know, I know कि हम पूरा का पूरा string print करने वाले हैं। Yes या no? Yes या no? Let's say कि मुझे सिर्फ ये वाला s print करना है। क्या करूंगा मैं? सिर्फ एक s print करना है। Any clue? अच्छा, कोई प्री क्लास निकला था क्या इसके लिए, स्ट्रिंग के लिए? ओके, ठीक है, ठीक है। तो वी कैन यूज इंडेक्स वर्जन हेयर टू। ठीक, जैसे एरे में हम लोग इंडेक्स यूज कर सकते हैं ना, वी कैन गो विद दैट। तो फॉर दिस एस व्हाट्स द इंडेक्स गोना बी? इज इट गोना बी 2, राइट? तो अगर मैं अभी ये करूं, आई विल बी प्रिंटिंग द एस, राइट? बाय दैट लॉजिक, if I do str.length, what am I gonna print? String का length, right? If I go and do a node index, I'm gonna print string का length. Clear? So that works. Now let's say कि I'm doing this str.length -1. What am I gonna print? लास्ट कैरेक्टर, तो हम L प्रिंट करेंगे। ठीक, तो अभी तक देख रहे हैं इट्स मोस्टली सिमिलर टू हाउ वी एक्सेस एरेज एंड ऑल, राइट? तो इन एरे, रिमेंबर, अगर हमें कोई इंडेक्स की चीज अपडेट करनी होती थी, व्हाट डू वी राइट? क्या लिखते थे हम लोग? अपडेट, अपडेट।
कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट अपडेट करना। तो रिमेंबर वी यूज टू डू, लेट्स से कि मुझे पहला एलिमेंट को m को n करना है, तो आई माइट हैव डन समथिंग लाइक दिस इन एरे। ऐसे कुछ करता मैं एरे में, राइट राइट राइट। लेट्स सी कि इफ दिस थिंग वर्क्स ऑन स्ट्रिंग और नॉट। ठीक, आई हैव रिटन द स्ट्रिंग एंड इफ आई गो एंड इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, क्या मसाइज को चेंज हो रहा है? इज द फर्स्ट थिंग गेटिंग अपडेटेड विद कैपिटल M? नहीं, नहीं। The reason behind that is that strings are immutable. कभी सुना है क्या immutable शब्द जिंदगी में? Yes, 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 yes. Basically immutable का मतलब होता है can't be changed. क्या रीजन है इसका? थोड़ा सा और मुझे समझाना पड़ेगा, तो लेट्स गो ऑन अ व्हाइट बोर्ड और वहां पे मैं थोड़ा बताता हूँ। यू कैन सी माई ब्राउजर राइट? प्लीज कंफर्म क्विकली। ठीक है, लेट्स गो टू आवर दिस थिंग एंड लेट मी क्लियर इट। ठीक, तो यू गाइज रिमेंबर JS डेटा टाइप्स? JS के डेटा टाइप्स याद है क्या? क्या क्या पढ़ लिए अब तक हमने? क्या क्या डेटा टाइप्स पढ़ लिए? वी हैव लर्न नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन, इतने ही पढ़े, राइट? लेट मी टेल यू समथिंग. The JS data types are basically divided into two things. दो चीजों में डिवाइड होते हैं JS के डेटा टाइप्स. One is primitive data, और let's say मैं DT लिख देता हूँ, right? Data type. And the other one is non-primitive data type. Primitive, non-primitive, again कभी सुना है? Right? Right? तो primitive का मतलब होता है early, right? Initially, बहुत पहले. तो primitive you can say early, and non-primitive in मतलब मीनिंग सेंस यू कैन कॉल इट एडवांस, राइट? ये बोलते हैं. ठीक, तो दीज वर यूजुअली क्रिएटेड इनिशियली एंड दीज वर क्रिएटेड लेटर सपोजिटली. ठीक, तो प्रिमिटिव में पता है कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? नंबर आता है, वी हैव स्ट्रिंग्स, वी हैव बूलियंस. इतने पढ़े हमने डेटा टाइप, सारे के सारे प्रिमिटिव में आते हैं. नॉन प्रिमिटिव में हमने एक डेटा टाइप पढ़ लिया जिसको बोलते हैं एरेज. ठीक ठीक, गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोना लर्न फ्यू मोर थिंग्स. तो नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएगा, और फिर प्रिमिटिव में आपका आ जाएगा अनडिफाइंड, एंड विल लर्निंग अबाउट नल एंड ऑल. ठीक, मेन बट अभी के लिए जस्ट कीप इन माइंड कि जेएस डेटा टाइप्स इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स. पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. और इनका एक मेन डिफरेंस होता है. वो मेन डिफरेंस क्या होता है? दैट डिफरेंस इज if they are mutable or not. ठीक, तो जो primitive data types है ना, they are immutable, we can't change them. वही non primitive data types है, वो mutable होता है. क्लियर? किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है हमने इन दोनों को, primitive data types एंड non primitive data types? ठीक, कुछ और बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा एडवांस है. लेट मी गिव यू अ बिट ग्लिम्प्स कि कैसा दिखेगा वो, बट बाद में कवर करेंगे. तो गिवन दैट एरे एक डेटा टाइप है, कैन वी डू अ टाइप ऑफ ऑन अ डेटा टाइप? टाइप ऑफ कर सकते हैं क्या डेटा टाइप पे? राइट, तो अभी हमने स्ट्रिंग पकड़ा है, तो इफ आई डू टाइप ऑफ ऑन इट, क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? रिमेम्बर, स्ट्रिंग मिलने वाला है, स्ट्रिंग मिलने वाला है. वे डू, आई एम गोना गेट ए स्ट्रिंग. मान लो यहाँ पे एक नंबर होता, नंबर होता 23, क्या मिलने वाला है? नंबर. लेट्स से कि यहाँ पे एक बूलियन होता, ट्रू, बूलियन मिलता, राइट? लेट्स से कि आई क्रिएट एन एरे, ठीक, एंड आई ट्राई टू डू अ टाइप ऑफ एरे. उसका मैं टाइप ऑफ करना चाहता हूँ, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका टाइप ऑफ? एरे, एरे आना चाहिए,
right? By the logic that is usually followed. But if I do a type of width, we'll see कि हम print कर रहे हैं object. ठीक. और क्या मैंने बोला कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एरेज आता है, ऑब्जेक्ट्स आता है. ठीक. तो बाद में बताऊंगा, बट मोटा मोटा ये समझो कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, आगे और भी आएंगे, फंक्शंस भी आएंगे, वो सारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं. सबका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आने वाला है. तो एरे का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, फंक्शन का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा. वो थोड़ा अलग होता है, बट हाँ, नॉन प्रिमिटिव में जितने भी डेटा टाइप्स आएंगे ना, उनका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला. बट वो बाद की बात है, जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और क्लियरली समझाऊंगा. बट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव क्लियर? हाउ दे आर डिवाइडेड? प्रिमिटिव जो है वो इम्यूटेबल है, वी कांट अपडेट और चेंज देम. नॉन प्रिमिटिव है वो म्यूटेबल है, वी कैन अपडेट देम. ठीक. तो नाउ गेट बैक टू कोड, और इसमें वी आर नॉट एबल टू अपडेट द स्ट्रिंग. ठीक. तो अभी कैसे चलेगा? लेट्स से कि आई वांट टू अपडेट दिस स्ट्रिंग. हाउ एम आई गोना डू दिस? टाइप ऑफ हटा देता हूँ. आई टेल इट लेटर की ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है अरे, जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे. आज के लिए थोड़ा स्ट्रिंग कवर करते हैं. आई वाज कवरिंग प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, तो सोचा कि एक थोड़ा आइडिया दे दूं. चलो ठीक है, दैट्स फाइन. वो चीज अभी शॉर्टली कवर करते हैं कि कैसे अपडेट करेंगे. बट लेट्स से कि इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन द एंड, डू वी नो हाउ टू डू इट? एटलीस्ट एंड और स्टार्टिंग में ऐड करना होता है. लेट्स से कि आई हैव टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स. मेरे पास एक है मसाई एंड वी हैव str2 जो कि है स्कूल. कैन आई ऐड देम बोथ? एरे में क्या करते थे? वी यूज्ड टू डू str डॉट पुश str2, ऐसा कुछ करते थे. तो वो स्ट्रिंग में नहीं चलने वाला. ठीक, गिवन दैट इट्स इम्यूटेबल. सिंपली क्या करेंगे, वी नो कि वी कैन डू कॉनकैटिनेशन इन इट. तो हम कॉनकैटिनेट कर देंगे. वी कैन जस्ट गो विद द कॉनकैटिनेशन. फाइनली हम लोग मसाई स्कूल प्रिंट करेंगे. अगर इसको उल्टा करना था तो वी कैन जस्ट डू str2 प्लस str. क्लियर? तो वी कैन सिंपली कॉनकैटिनेट इट एंड दैट्स गोना वर्क. ठीक. बट अगर कोई एक कैरेक्टर अपडेट करना हो, वो कैसे करेंगे? लेट्स सी. फॉर दैट विल हैव टू यूज लूप्स इन इट. लूप्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है. तो लेट मी कमेंट ऑल दिस आउट. सो कमेंट कर लेता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू रन अ लूप ऑन अ str. ठीक, लेट्स टेक मसाई स्कूल ओनली. हाँ, तो हाउ डू वी रन अ लूप? लूप्स कैसे रन करते हैं? तो वी कैन जस्ट सिंपली राइट अ फॉर where I equals to 0, I is less than. कहाँ तक रन करना है? Till where do we have to run it? str.length, right? We can go with str.length. Then I'll do a I plus plus inside it. If I do a console.log str I, क्या मैं हर एक कैरेक्टर प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग का? राइट राइट. नोड इंडेक्स, मैं हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का प्रिंट कर रहा हूँ. लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे मैं सिंगल डील कर रहा हूँ, if I try to update it, do you think it's gonna get updated? Yes, no, it's not gonna get updated. क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव है, राइट? इस डायरेक्ट तरीके से हम अपडेट नहीं कर सकते. व्हाट विल हैव टू डू इट इज कि हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. वी नीड टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एंड विल कॉल इट एम्प्टी. और उसमें लेट्स से कि हमें फर्स्ट कैरेक्टर को अपडेट करना है. I'll write if I is equals to 0, or rather let's keep it triple equals to, that's also fine. What I'll do is n str plus equals to n else, not this, else n str plus equals to str I.
Abhi, if I go out and if I print console or log new string, are we expecting the new string to be updated one? Right? So abhi, if we do, and if I go and print it, abhi, it's getting updated. Clear? Understood कि कैसे अपडेट करना है अगर स्ट्रिंग को करना पड़े कभी तो ठीक क्लियर हाँ I'll repeat myself once again. So if we want to update, let's say this M to a capital N, ठीक I can't do it directly by writing str0 with this, right? Because it's a primitive data type string and it's immutable. ठीक तो for updating it हमने क्या किया, we picked the string, we created an empty string और हमने एक loop run किया on this initial string. We checked the condition कि if whatever index that we want to update, if that is satisfied, please concatenate the whatever you want to push वो डालो and concatenate in it. क्लियर तो लेट्स से कि आपको सारे एस को कैपिटल में अब चेंज करना है तो वी शुड हैव गॉन विद इफ str I is equals to if that is equals to s, we are going to concatenate this, right? Right, तो अभी जितने भी स्मॉल एस है they're gonna get converted into capital ones. So if I do a clear, if I do one more index, we'll see कि जितने भी small s थे they're getting converted into capital S. Clear guys? समझ आया क्या हुआ क्यों हुआ? String is primitive. Understood? Everyone? समझ आया? Come on guys, I am not seeing any response. Confused. Where? String को array में convert कर सकते हैं? Yes, we can. कर सकते हैं, but यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, वो भी बता दूंगा. If you want to update multiple conditions, then multiple if condition लिख. ठीक, okay, I'll repeat the for loop once again. तो let's go with the small s and capital S conversion, right? ठीक. So if I want to convert this small s to capital S, I can't go with this approach directly as we did in array. Yes or no? Is this part at least clear? Right? So for that, what I'll have to do is, we know that concatenation works on string, right? We can update a string by doing concatenation. तो हमने क्या किया? We took an empty string and we ran a loop on initial one. इस पे loop run किया and we created a condition कि if इसकी value, तो if the string I is equals to small s, right? Small s, हम concatenate कर देंगे capital S उसके बजाय. Skipping this, we are concatenating the capital S. Clear? That's why जब भी हम n string print कर रहे हैं, हम str नहीं print कर रहे हैं, हम nstr print कर रहे हैं, जिसमें हमने concatenate किया है सब कुछ. So we are getting the updated string. Is it clear now? ठीक, करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो quickly tell me, let's say मैं ये कर देता हूँ. If I pick this string again, pick this string again, अभी गिन के बताओ इसमें वॉवेल्स कितने हैं? ठीक, 5 2 3. I'll keep you guys to that. Let's say कि if I want to write a logic जो कि काउंट करेगा एक स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स है. कैन वी डू इट? वी नो कि एक स्ट्रिंग पे लूप चल सकता है. ट्राई इट, टेक 2-3 मिनट्स, लिख के देखो एक बार.
me write it. Count the number of vowels in above string. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाँ, if else करना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ तो करके। करेक्ट जीवन, करण करेक्ट। ठीक है, अंदर के लॉजिक लिखे हैं। I mean बाहर का लूप तो वैसे चलेगा, दैट्स फाइन। व्हाट आर यू गोना राइट इनसाइड? की कंडीशन लगाएंगे कंसोल में, स्ट्रिंग डॉट लेंथ 1, स्ट्रिंग डॉट लेंथ 2, ऐसे प्रिंट होगा। String dot length 1. What's this? Are you telling the logic for this thing? अच्छा चलो, I'll show. ट्राई करते हैं। तो we know at first कि एटलीस्ट लूप तो चलाना पड़ेगा स्ट्रिंग पे, right? We have to go with a loop. So we can, let's say we can maintain a count, right? Count will be 0 initially, or let's run a loop on. So for where I equals to 0, I is less than str dot length, of course, and I'm going to do a I plus plus. Inside this, I can directly go with either str I, या फिर मैं उसको एक वेरिएबल बना देता हूँ, तो let n equals to str I. ठीक, तो यहाँ पे I can directly go with n equals to either a or n equals to e or n equals to I or n e or n equals to o or n equals to मेक सेंस? रिमेम्बर ऐसा कुछ किया था हमने, राइट? तो अब ये कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू होगी जब हमारा स्ट्रिंग आई, यानी जो भी कैरेक्टर हमारे इटरेशन में आया है वो एक वोवेल है। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कर देंगे काउंट को प्लस प्लस, राइट? एंड फाइनली अगर मैं प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग काउंट, मैं गोना प्रिंट द काउंट ऑफ vowels in that string, right? So let me run it. If I run it, I'm printing 5. क्या हम करेक्ट है? तो we have a 1 2 and 3 and 4 5, right? Clear? तो we are correct. Let's say कि मैं इसमें 3 और a ऐड कर दूं, तो now we should be updating it. If I do, I'm printing 8. ठीक, बट लेट्स से कि ये जो a थे वो कैपिटल है, तो हाउ मेनी वॉवेल्स आर इन दैट स्ट्रिंग? वॉवेल्स कितने स्ट्रिंग में है? तो 8, राइट? वॉवेल्स 8 हैं, बट प्रिंट कितने होंगे? क्यों? बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर स्मॉल वंस, राइट? इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट? एल्स इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर एल्स इफ लगाते हैं तो उसमें वी विल बी गोइंग विद कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, ऐसे करना पड़ेगा, राइट?
or do we know an inbuilt function for that? Correct. तो many of you guys remember it. ठीक, तो गिवन दैट उस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर अपर केस में है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, यहाँ पे हम लोग लोअर केस के साथ मैच कर रहे हैं, राइट? तो वी कैन जस्ट पिक दिस एंड इसको लिख देंगे टू लोअर केस, राइट? अगर मैं अभी जाऊं एंड इफ आई प्रिंटेड, स्टिल मैं 8 प्रिंट करूं। क्लियर? इजी है, इजी, राइट? तो इनबिल्ट कवर ही किया, तो लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर एलिमेंट इनबिल्ट फंक्शन। तो लेट्स से विल हैव टू टॉक अबाउट एरे वंस, एक बार एरे के बारे में बात करना पड़ेगा। तो लेट मी क्रिएट अ एरे, var array equals to 1 2 and 3, ठीक? तो इफ यू वांट टू चेक कि इस एरे में अगर कुछ स्ट्रिंग प्रेजेंट है और उसका इंडेक्स क्या है, तो यू कैन रन अ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ, ठीक? विल कमेंट दिस वन आउट और उसके ऊपर कंसोल में लिख के देखते हैं व्हाट डू आई मीन। तो लेट्स से कि आई वांट टू चेक कि इस एरे में इफ वी हैव 3 और नॉट, मैं क्या करूंगा, आई विल डू अ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आई राइट जो भी स्ट्रिंग हम लोग खोज रहे हैं, राइट? मैं 3 सर्च कर रहा हूँ। ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा कि कौन से इंडेक्स पे वो चीज प्रेजेंट है, ठीक? तो इफ आई डू नोड इंडेक्स, वो प्रिंट कर रहा है कि सेकेंड इंडेक्स पे 3 इज देयर। ठीक, तो समझ आ रहा है क्या कर रहा है वो इनबिल्ट फंक्शन, राइट? लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर 4 जैसा कुछ प्रेजेंट है उसमें नहीं, राइट? तो इट विल रिटर्न -1, ठीक? अगर कोई कंडीशन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो -1 रिटर्न करेगा। तो इवन इफ आई सर्च 5, अभी भी इट्स गोना रिटर्न -2, ठीक? वो फंक्शन उस तरीके से बनाया ही गया है कि वो -1 रिटर्न, ठीक? वी कैन क्रिएट इट, इस तरीके के फंक्शन हम खुद बना सकते हैं, बट उसके लिए जस्ट वेट 1 more week, once we have covered nested loop I will teach you how to create functions around, ये सब चीजें हम खुद बना सकेंगे, ठीक? बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग देम, JS has provided us with some inbuilt function और वो उसको हम यूज करें, ठीक? तो इसी तरीके से ये चीज हम स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, राइट? लेट्स से हमने str बनाया और उसके अंदर हमने लिखा 1 2 and 3, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं एरे ऑफ के बजाय मैं str में सर्च करूँ और str में मैं खोजना चाह रहा हूँ 3, if I do a node index on it, we'll get 8। एनी आइडिया 8 क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया, 2 क्यों नहीं आया? एरे में तो 2 आया था। काउंट स्पेस, राइट? तो स्ट्रिंग में इंडेक्स कैसे मैप हो रहे हैं, वो एक एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, राइट? तो जीरो पे क्या होगा, 0 पे ओ होगा, ठीक? और ठीक, 1 पे क्या होगा, आपका एन होगा, उसी तरीके से 2 पे क्या होगा, ई होगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं ना, स्ट्रिंग्स में स्पेस भी काउंट होता है इन इंडेक्स, क्लियर? तो यहाँ पे क्या 3 में हमने एक स्पेस दे रखा है, राइट? तो दैट स्पेस इज ऑल्सो गोना गेट काउंटेड। उसी तरीके से यहाँ तक जहां पे टी है ना, उसका इंडेक्स 8 है, दैट्स वाई जो स्टार्टिंग वर्ड है ना, उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर का इंडेक्स वो बता देगा, क्लियर? तो इफ यू वांट इंडेक्स ऑफ ई, यू आर गोना राइट ई, और वो जो भी फर्स्ट अकरेंस देखेगा ना स्ट्रिंग में ई का, उसको पकड़ के भेज देगा। फिर डू अ नोड इंडेक्स, हैव टू क्लियर इट, एंड इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, मुझे 2 मिलता है, जो भी पहला अकरेंस होगा, ठीक? I'll टेल यू शुभम कैसे करते हैं स्ट्रिंग टू एरे, बताऊंगा अभी, थोड़ा प्रोग्रेशन एक तरीका होता है, राइट? ठीक है, तो इज दिस पार्ट क्लियर कि हाउ यू कैन फाइंड समथिंग इन मे बी एरे और स्ट्रिंग?
एवरीवन, आपको इंडेक्स मिल जाएगा, राइट? ठीक है, बस छोटी सी एक चीज थी दैट वी माइट हैव टू कवर। इसमें थोड़े और फीचर्स है, बट वो फीचर समझाने के लिए अगेन आई नीड टू गिव यू अ बिट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इनबिल्ट फंक्शन। ठीक, चलो तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ क्वेश्चन, राइट? तो लेट्स से कि आई हैव अ स्ट्रिंग, right? Again, of course, we are going to use one string that is called Masai string, right? And the question is, print all the characters in even position. Even position मतलब index, जो भी even index पे है ना, उनको print कर। Can you guys do that? कर सकते हैं? Yes or no? Can we do this? Right? Try it once. तो आज की क्लास इजी ही होगी, डोंट वरी। एक बार एरे कवर हो जाता है ना, तो एकदम उसी के नक्शे कदम पे स्ट्रिंग चलता है, बस एक चीज छोड़ेगी कि स्ट्रिंग अपडेट नहीं हो सकती। ठीक, दैट्स व्हाई क्लास इज बिट इजी। एक बार ट्राई करो इफ यू कैन डू दिस और नॉट। वही प्रोसेस इफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, यू विल हैव टू प्रिंट ऑल द कंडीशंस एट इवन पोजीशन, नॉट कंसोल। एक बार और देखो, ट्राई करो। कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉन्कैटिनेट करना है, राइट? एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और उसमें कॉन्कैटिनेट करना होगा, दैट्स ऑल। बाकी पुराना लॉजिक एकदम सेम रहेगा। ठीक, तो लेट मी क्विकली डू इट। हमें क्या करना है, विल हैव टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट नहीं करना है, राइट? वी हैव टू प्रिंट इट। तो आई विल गो विद फॉर वेयर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन str.length i plus plus, and in this I'll check ki if I is divisible by 2, if this thing is even, what I'll do is nstr plus equals to str I, right? उस कैरेक्टर को मैं nstr में भेज दूंगा। And finally, if I do a console.log of nstr, am I gonna get every even positioned character? सारे even position वाले मिलने वाले मेरे को। If I do a quick index, जितने भी even पे थे, I'm gonna get it. ठीक, easy easy easy। ठीक, अच्छा, let's do one more question। Let's do one more question। Again, I have a string, बस इसको रिवर्स करके रिवर्स करना है। कैसे करेंगे? रिमेंबर एरे रिवर्स किया था, स्ट्रिंग रिवर्स करना है, कर सकते हैं क्या? ट्राई करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। हम फॉर आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उल्टा प्रिंट करना है तो रिवर्स प्रिंट करना है तो लेंथ -1, राइट? लेंथ -1, करेक्ट करेक्ट। तो विल डू str.length -1। कहाँ तक जाना है? वी हैव टू गो I is greater than or equals to 0 and we'll do a minus minus, and of course again we'll have to create a new string, empty one, और उसमें simply nstr plus equals to str I। ठीक, if I print nstr out, we are printing it opposite, right? ठीक है, इसी में let me do a bit, इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। this is Masai school, right? This is Masai school। इसको रिवर्स करेंगे, वी हैव स्पेसेस, तो वी कैन अगेन गो विद दिस, यस और नो? यस और नो? राइट राइट राइट, वैसे ही रिवर्स होगा। इफ आई गो एंड प्रिंट इट, ये प्रिंट करना है, बट दिस इज जिब्रिश, कोई सेंस नहीं बना रहे। आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक कि हम ऐसा कैसे प्रिंट कर पाएंगे। इज दिस रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग?
मतलब हम वर्ड्स को रिवर्स कर रहे हैं, पहले ये प्रिंट कर रहे हैं, फिर ये वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, फिर फाइनल वाला प्रिंट कर रहे हैं। एनी गेसेस, एनी आइडिया? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, आई विल गिव यू गाइस 3 minutes, ब्रेक भी ले लो एंड यू कैन थिंक अबाउट इट टू। ठीक, आके विल सॉल्व इट। तो लेट्स कम बैक एट 9, राइट? 6 हो रहा है, विल गेट बैक एट 9 एंड इन मीन टाइम थिंक अबाउट इट। Yes, is everyone back? Please write one in chat if you're back. ठीक है, आंसर भी चलेगा, that's fine. Okay. ठीक है, तो किसी को आइडिया लगेगा हाउ कैन वी डू दिस? राइट, तो देयर इज अ लॉन्ग वे, एक बड़ा तरीका है, उसमें क्या करेंगे कि वी कैन गो विद फॉर लूप, राइट? एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ कोर्स बनाएंगे एंड वी हैव टू गो विद चेकिंग की स्पेसेस कहाँ हैं। दैट्स वेरी लॉन्ग वे। एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, व्हाट वी कैन डू इज, अगर बाय एनी चांस थिंक if we are able to break Masai school, right, and is and this, और हम उसको मे बी एक एरे में कन्वर्ट कर दें, राइट? एरे में कन्वर्ट कर दे तो विल वी बी इजीली एबल टू शफल दिस अराउंड? आई मीन अगर मैं ऐसा कुछ आपको बताऊं कि पॉसिबल है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, तो क्या इजी रहेगा रिवर्स करना? ठीक, देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन फॉर इट दैट इज कॉल्ड स्प्लिट, राइट? स्प्लिट बोलते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट इट डज, हाउ इट डज। ठीक, तो लेट्स से कि आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एंड दिस विल बी कॉल्ड स्प्लिट स्ट्रिंग
और उसमें what I'll do is I'll pick the string and I'll write dot split और ब्रैकेट्स के अंदर ना अभी के लिए लेट्स राइट स्पेस। ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली क्या जाता है, आपको किस तरीके से स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। ठीक, हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग में जहां पे भी स्पेसेस है उधर उस स्ट्रिंग को तोड़ दो, ऐसा कुछ करना है। ऐसे कुछ करना है, राइट राइट। तो इफ आई ट्राई टू प्रिंट console.log split str, what's this? I'm converting that string, break down कर रहा हूं मैं और उनको अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक, तो लेट्स से व्हाट डू आई मीन बाय दिस थिंग। लेट्स से कि मैं कोई और स्ट्रिंग लेता हूँ, राइट। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ वेर क्या बोले इसको, लेट्स कॉल इट फ्रूट्स, राइट। फ्रूट्स बोलते हैं। और इसमें आई हैव अ स्ट्रिंग और इसमें क्या किया मैंने एप्पल लिखा। ठीक, उसके बाद मैंने ये डाल दिया। ठीक, मैंने लिखा ऑरेंज, फिर मैंने ये डाल दिया, फिर मैंने लिखा पाइन एप्पल, फिर मैंने ये डाल दिया। If I want to break down this string in some of this fashion, यहाँ पे हमें स्पेस से हटाना था तो हमने स्पेस यूज किया। अभी कैन यू गाइस गेस कि इफ वी हैव टू क्रिएट द एरे लाइक दैट व्हाट डू वी हैव टू डू। स्प्लिट के अंदर क्या लिखूंगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे, कोड्स के अंदर आई विल बी राइटिंग दिस। ठीक, तो पुराने वाले को वैसे ही रहने देते हैं। लेट्स क्रिएट var split fruits, राइट। और उसमें विल पिक द फ्रूट्स डॉट स्प्लिट और उनको स्प्लिट करना है हमें विद दिस थिंग, इसके साथ स्प्लिट करना है। तो नाउ इफ आई गो ऑन एंड इफ आई प्रिंट console.log split one, right, if I do it node index, I'll be getting it in this fashion. क्लियर, समझ आया कि कैसे स्प्लिट हो रहा है। क्लियर, एंड टेल मी व्हाई एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी मिल गई हमें, क्यों एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों मिली? बिकॉज हमने लास्ट में भी एक एंड जोड़ रखा है। ठीक, तो यहाँ पे भी वो एक डिफाइन करेगा। तो क्विकली टेल मी इफ आई हैव अ स्ट्रिंग जो कि ऐसा कुछ है, और मुझे हेलो वर्ल्ड अलग अलग करना है। हाउ कैन आई डू इट? प्लीज राइट इट इन चैट। पूरा लिख के बताओ, पूरा लिख के बताओ कैसे स्प्लिट करूँ। We'll be doing str.split with ns, right? So again we're gonna write split str और उसमें we're gonna do str.split और फिर हम s से split करेंगे। If I go on and print console.log split str, wait. चलो ताकि एरर ना है, फिर do index, ये पूरे को कर देते हैं अभी के लिए। चलो now let's try to print it index, we are getting that. क्लियर, तो चलो स्प्लिट तो समझ आ गया कैसे करना है, दैट्स फाइन। लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, वापस आते हैं उस पे। अब हमें बात करना था, अभी हमने स्प्लिट वगैरह तो कर दिया। टेस्ट टू एंड बस इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो हमने स्प्लिट भी कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग इट इन दिस फॉर्मेट, राइट। इसको रिवर्स कैसे करेंगे? फाइनली रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए हमें, वो कैसे प्रिंट करेंगे? करेक्ट करेक्ट। तो अभी str के बजाय लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर द न्यू array that we have created where I equals to 0, I is less than split string
डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसमें क्या करना है हमें, NSTR आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, तो NSTR प्लस इक्वल्स टू स्प्लिट STR का आई एंड प्लस विल इट वर्क? नो, हमने स्प्लिट तो किया था बट क्या हमने रिवर्स किया उसको? रिवर्स नहीं किया, तो अभी भी वो एकदम सेम वही चीज प्रिंट करेगा. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट क्विकली रिवर्स इट. विल बी राइटिंग स्प्लिट STR डॉट लेंथ, और यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन डू आई माइनस माइनस. ठीक ना, मैंने अभी मुझे मिलेगा राइट, ऑफ कोर्स माइनस. If I do now node index, we are just reversing. Clear? Clear? तो ये तो हो गया एरे वे से. एक बार इट वुड बी बेटर, एक बार आप ट्राई करो कि अगर सिर्फ प्लेन स्ट्रिंग यूज करके करे तो कैसे होगा विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन. इट कैन बी डन, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, बट कैसे होगा एक बार आप ट्राई करना. इट विल टेक टाइम बट हाँ, एक बार ट्राई करना. ठीक, एंड विल सी कि अगर हो गया दैट्स फाइन, एल्स विल टेक दिस फर्स्ट थिंग इन नेक्स्ट क्लास. ओके, बट आपको एक बार इसको ट्राई करना है. एनीवेज, इज स्प्लिट क्लियर? हाउ यू कैन स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एरे, एरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे एंड हाउ वी कैन अपडेट इट. ठीक, कैन वी यूज स्प्लिट फॉर अपडेटिंग? जैसे मतलब नॉर्मली हम अपडेट करना चाह रहे थे तो STR इक्वल्स टू मसाई स्कूल school, we were trying to update this first stuff. Can we do it by using split? No for name. कैसे करेंगे एक बार ट्राई करो. क्विकली टेल मी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट. पहले तो ये बताओ कि स्प्लिट किस कंडीशन पे करोगे. स्पेस, बट स्पेस तो दिया ही नहीं है मैंने स्ट्रिंग में. इंडेक्स नंबर, ओके ट्राई. एक बार हो तो बताना मेरे को कैसे करेंगे. स्ट्रिंग का ओके, शुड आई टेल कि ट्राई कर रहे हो कोई? इंडेक्स, ओके ओके, आई टेल यू. तो व्हाट विल डू इज STR स्प्लिट, हम क्या करेंगे, विल पिक STR डॉट स्प्लिट एंड कोई स्पेस नहीं है तो बस कोई स्पेस देना ही नहीं है. वी हैव टू स्प्लिट एवरीथिंग राइट. कुछ भी नहीं भरा इसमें. लेट्स सी कि व्हाट इट प्रिंट्स. STR स्प्लिट नोट इंडेक्स मेक सेंस? सेंस बनाता है क्या? राइट, हमें कोई स्पेस से नहीं स्प्लिट करना है, किसी कैरेक्टर से स्प्लिट नहीं करना है, तो जस्ट राइट द कोड्स विदाउट एनीथिंग. वो हर एक कैरेक्टर के साथ स्प्लिट कर देगा. क्लियर? क्लियर गाइस? राइट, एंड नाउ कैन वी अपडेट एरे? एरे को अपडेट कर सकते हैं, तो वी कैन जस्ट गो एंड राइट STR स्प्लिट 0th एलिमेंट, उसको पकड़ो और उसको एन से अपडेट कर दो. राइट, एंड फिर ऑफ कोर्स हमें लूप रन करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, उसमें डाल दो स्ट्रिंग सारे, कॉन्कैटिनेट करा दो और फाइनली वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो. ठीक, तो दिस इज ऑल्सो अ वे यू कैन डू दैट. ठीक, चलो. Again, it will be more or less questions only, so let's take one more problem. Let's say कि we have a string that is called password, right? Password नाम का string है and it's something, so let's say password 1 2 3. अभी if we have to check if this password is strong or weak, usually क्या check करते हैं हम लोग? Usually क्या check करते हैं?
इन नॉर्मल वेबसाइट्स स्ट्रेंथ पासवर्ड भी @ okay, so we check if there are character present in it, special character per se, right? We check कुछ लेंथ तक होना चाहिए, राइट? यूजुअली कहते हैं कि इफ इट्स लेस देन 7 इट्स नॉट फाइन, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, राइट? लेट्स क्रिएट अ केस फॉर अस, लेट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। लेट्स से कि हमें कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक? this one, let's pick this one, let's take this, let's take this, and let's take this, and asterisk is not usually used, it's ठीक, we usually use these special characters, right? तो ये कैरेक्टर हमारे पासवर्ड में प्रेजेंट होने चाहिए, एंड मिनिमम लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 7, कम से कम 7 होना चाहिए। तो कैन वी चेक दीज इन आवर पासवर्ड? आज जितना कुछ पढ़ा है उसके बाद come on guys, yes, no, anything? Yes, okay, we have no, all right, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि हमें लेंथ चेक करना है, तो हाउ वी कैन चेक लेंथ? लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन अ बिट। हमें लेंथ चेक करना है कि इफ इट्स मिनिमम 7, तो वी कैन जस्ट गो विद पासवर्ड डॉट लेंथ, राइट? हम उसके साथ जा सकते हैं। बट अगर हमें कैरेक्टर चेक करना है, वो कैसे करेंगे? हैव वी नॉट सॉल्व वॉवेल प्रॉब्लम, राइट? तो इफ वी चेक कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग में एक बार भी ऐसे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं, कैन वी डू दैट? ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। I'll give you guys 3 minutes, 3 to 4 minutes actually, और try करो if you are able to create it or not. Just check करो कि अगर ये दो कंडीशन ट्रू आ रही है, make it strong, else false, else weak. Try it, everyone. ठीक है, some of you guys are going correct way, some of you are I mean almost correct, almost correct.
ठीक है. Should I do it or you guys want a few more minutes to try? चलो, let's do it. Let's do it together once. ठीक. तो almost correct. ठीक. तो we have two conditions, right? We have two conditions. Let's break it down. हमें पता है कि this we can simply go and check string dot length. If that is 7 or greater than that, we can call it strong, else weak. Let's first try to deduce this problem. How we can check if there's a character present in it or not, right? So what we can do is we can run a for loop where I equals to 0, I is less than password dot length and I plus plus. And in this we can do a simple check if our password I या फिर एक variable बना देते हैं so that it will be easier to use. Let's say in password I, right? If n is equals to any of these characters, right? So if it's equals to this, or if n is equals to hash, or if n is equals to dollar, or if n is equals to where's answer it, or n is equals to this. So this thing is gonna do a checkup for our first condition. पहली condition ये check कर लेगा, right? So we'll have to, let's say we can maintain a count, or वो count is gonna check if this is present or not. Okay. So what we're gonna do is we're just gonna do a count plus plus. Okay. Now password दिख रहा है. If I do a console dot log count on it, what am I gonna print for this password? 0, right? 0 print करेंगे because ये condition कभी चल ही नहीं रही है, right? Everyone there? Yes, yes, yes. तो एक condition तो we can go with this, right? And the second one is simply our length checkup, right? So what we can do is inside, let's say कि let length equals to password dot length. और उसके बाद we can do our checks. So we can go with let's say कि if where's the length? Let's say password dot length is greater than 7 and count is greater than 0. ठीक. So we can say कि console dot log strong password, right? Else we can simply go with console dot log weak. Make sense? Make sense? Right? So let's do a quick run and let's see if our password is weak or not. If I do a node index, I'm printing weak password, and let's say if I add at the rate in it, if I do a node index, we're printing strong password. ठीक. Now अगर हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर एक टाइम पे यूज किया, राइट, ओनली वंस, देन वी शुड बी प्रिंटिंग एवरेज पासवर्ड. और अगर काउंट 1 से ज्यादा है, राइट, मोर देन 1 इज प्रेजेंट, वी शुड बी प्रिंटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. तब क्या करेंगे? We have to do just a minor tweak somewhere in here. यहाँ पे condition में we can do password length is it's greater than 7 and if count is greater than 1, right? मतलब ये character 1 से ज्यादा time present है, we can go with strong password.
else if password dot length is greater than 7 and count is equals to 1 only, तो हम print कर देंगे, we can print average password, else finally we'll print console.log simply weak. ठीक, तो इस हिसाब से अभी का पासवर्ड क्या है? इज इट स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक? It's average password, right? So if I go and if I run the condition, we are getting average password, right? And if we do a node index for this, now we should be getting strong password. Clear? I mean, mostly strings and arrays ऐसे ही we are gonna use them. Clear है क्या? Are these stuff clear? Any doubts till now in string or even in array? Anything? नहीं? ठीक है, ठीक है, तो एक छोटी सी चीज और बताओ. लेट्स से कि आई हैव दिस स्ट्रिंग str, of course it's Masai school, and I have to print this string without any s. मतलब जितने भी s है ना, सारे s कैरेक्टर हटा दो. हाउ कैन वी डू दैट? We can do it, right? Yes or no, people? Yes, right? So I mean, we can either go this way for where I equals to 0, I is less than str dot length I plus plus, right? And हम क्या करेंगे, nstr बना देंगे where nstr equals to empty string, and we can write a if condition, right? If condition लिख देंगे, if string is not equals to s, है ना? हम क्या लिख देंगे? Simply we can go with either string I is not equals to s. अगर वो इसके बराबर नहीं है तो we can do nstr plus equals to str I. ठीक, अगर मैं अभी console.log nstr करूं, am I gonna skip all the s? सारे s प्रिंट करने वाला, राइट? s skip करने वाला एक्चुअली. तो we are doing that. or tell me if I'm correct or wrong. If str I is equals to s, can this work? ये काम कर सकता है क्या? Okay, we have no, we have yes, but there is no nstr. हाँ, there is no nstr, that's fine. तो nstr else में लिख देते हैं, else nstr equals to str. अभी काम करेगा? ठीक, अब ठीक कर दिया. अभी काम करेगा? अब काम करेगा, right? So now if I do a node index, again that is happening. Why? Because जब भी s आ रहा है, we are skipping that entire loop. ठीक, तो whenever string I is getting encountered, it is skipping this entire loop. So can we apply continue for arrays too? इसी तरीके से can we do that? Right? And can we apply breaks too? Right? So yeah, those all things can happen. So yes, I mean pretty much these are the stuffs that we have to cover in strings and arrays. इतना ही है.
अच्छा, let's do a quick thing. I'll give you a bit glimpse की next week में हम क्या देख सकते हैं, right? So let's say कि let array equals to this, right? ये रहा array and इसके अंदर we can have multiple strings, right? Again, let's go with 1, 2, and we have 3, right? So if I try to print each element, मैं simply I can go with for where I equals to 0, I is less than array dot length and do a I plus plus, right? If I do a console dot log array I, हम सारे strings print करेंगे, right? जितने भी strings है इस array में we are gonna print them. But क्या हम strings पे भी loop चला सकते हैं? Can we run a loop on strings too? Right? तो एक चीज बताना, if I write array 1, what am I gonna print? If I do a actually console or log with it, क्या print करने वाला हूँ? 2, right? What if I want to print the first character of 2? अगर मुझे 2 का बस ये t print करना है, can I do that? Yes. अच्छा, let's do one thing. Let's break it down even further. थोड़ा सा और break down करते हैं. तो array और इसका कर देते हैं हम element, right? Clearly रखते हैं. And in this we are doing array 1. Let's see, अगर मैं ये print करूंगा तो we are getting node index, हमें मिल रहा है 2 which is a string. तो ये is somewhat equals to this, yes or no? Yes, everyone, yes, yes. और अगर मैं मान लो कि अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, आई जस्ट डिक्लेयर्ड कि ELE इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं ELE 0 करता तो मैं t प्रिंट करता क्या? जस्ट फॉर स्ट्रिंग्स केस प्रिंट करता, राइट? तो इफ आई ट्राई टू डू इट इन कंसोल, मान लो कि मैंने ELE पकड़ा विच इज 2 बाय द वे फॉर नाउ, and if I try to pick the first element from it, are we expecting a error or are we expecting a result? Okay, we are expecting a result. Let's see if I do node index, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? हम t प्रिंट कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हमने इसको 2 स्टेप्स में किया. पिक दिस और इसको ऊपर कहीं छोड़ देता हूँ एंड लेट्स कीप आवर फोकस ऑन दिस. चलो, तो हमने इस प्रोसेस को 2 चीज में ब्रेक डाउन किया. हमने क्या किया? हमने पहले एरे 1 पिक किया, तो हमने ये स्ट्रिंग पिक की और फिर हमने उस स्ट्रिंग का ये पिक किया, द फर्स्ट कैरेक्टर. इतना करने के बजाय इफ आई रोट दिस, हम उस पूरे चीज को कवर कर लेते. तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट पिक करो विच इज 2, और उस फर्स्ट एलिमेंट का 0th एलिमेंट पिक करके लाओ विच इज t. प्लीज रैप दिस अराउंड योर हेड. मतलब समझ पा रहे हो इस चीज को, राइट? तो अगर मैं अभी प्रिंट करूं तो आई एम प्रिंटिंग t. ठीक, लेट्स से कि आई वांट टू प्रिंट r. व्हाट एम आई गोना राइट इन हियर? यहाँ पे क्या लिखूं एक बार बताओ. हैव टू प्रिंट r of 3. Okay, I'm seeing 2,2, I'm seeing 3,2. अच्छा, let's try. तो अगेन गाइस, कभी भी ये करो ना, ब्रेक इट डाउन स्लोली, ठीक, धीरे धीरे उसको तोड़ो. तो पहले ये बताओ कि हमें एरे का कौन सा एलिमेंट पकड़ना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0th? सेकंड एलिमेंट पकड़ना, राइट? तो पिक द सेकंड एलिमेंट. तो आई एम पिकिंग दिस स्ट्रिंग, राइट? ये 3 पकड़ रहा हूँ.
और मैं क्या करूंगा, उस 3 का मुझे कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, फर्स्ट, 0, 1 या second, right? So I'll go with this. Now if I do a node index on it, I'm printing that specific one. Clear? Clear? तो any problem in getting things जब वो एक के अंदर एक हो, any doubt in this structure at least, इतना सा जो कोड लिखा है इसमें, ठीक. Let me do one thing quickly. Let's have a array again. Let array equals to, अभी इसके अंदर let's have a array 1, 2 and 3. इसके अंदर let's have a array 4, 5 and 6. इसके अंदर let's have a array 7, 8 and 9. तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया और उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे एरे डाल दिए, ठीक. डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी पॉसिबल? ऐसा कुछ होना चाहिए. वी डोंट नो बाय नाउ, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. लेट्स से इफ आई डू एरे 0 ऑन इट, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? मैंने एरे पिक किया और मैंने उसका 0th एलिमेंट पिक किया, तो उसका 0th एलिमेंट ये पूरा एरे है. आर वी एक्सपेक्टिंग एंटायर 1, 2, 3? If I do a node index on it, we are getting 1, 2, 3. Let's say I write 1, 2 here. तो क्या प्रिंट करूंगा मैं? 4, 5, 2 लिखा है, 2 लिखा है, राइट. तो 7, 8, 9 प्रिंट करेंगे. इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? 2 लिखा है, राइट. तो ये 0, ये 1, ये 2, ठीक. अब पिछले वाले लॉजिक से एक बार ट्राई करो और टेल मी कि अगर मुझे 9 पिक करना है स्पेसिफिकली, हाउ कैन आई डू इट? नाइन पिक करना है. I'll be writing -1. Think again. I have to pick 9. Right? So we can just pick 2. Are we going to access 9 now? If I do a node index on it, हमें 9 मिल रहा है. Understood? तो पता है अभी हमने क्या चीज कवर की? This thing is called a 2D array. 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब क्या होता है? अच्छा, 2 में जो D होता है बस उसका मतलब बताओ. 2 डायमेंशंस. 2 डायमेंशंस. जब HTML CSS पढ़ रहे थे तो कोई चीज पढ़ी थी जो कि 2 डायमेंशनल थी? पहले दिन पढ़ा था, कुछ याद है? पहला दिन ग्रिड भी पढ़ा था. यस, ग्रिड वाज 2 डायमेंशनल. वेरी गुड. टेबल भी 2 डायमेंशनल था, राइट. राइट. तो 2 डायमेंशन में 2 चीजें होती है. कौन बताएगा क्या क्या होती है? करेक्ट. करेक्ट. Either you can call it XY or you can call it row column, you can call it length and width. Everything is fine. But going forward, programming में जब 2D arrays की बात होगी तो we will call it rows and columns. तो ये जो array है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है. मतलब ऐसा उसको assume करना चाहिए कि 1, 2 and 3 we have 4, 5 and 6, we have 7, 8 and 9. क्या ये रोज एंड कॉलम्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है? राइट. राइट. तो कितने रो है इस एरे में? अगर मैं बोलूं कि एरे वेरिएबल में कितने रो है तो क्या बोलोगे? 3. कितने कॉलम्स है? 3, राइट. और क्विकली बताओ, इसको कॉलम्स बोलते हैं ना एवरीवन? नहीं, रो बोलते हैं, राइट. ठीक है. तो दैट्स अ लिटिल बिट जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली कवर करेंगे. मैंने बस बताया कि हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं. देयर इज अ वे कि ये सब चीज हम एक साथ प्रिंट कर देंगे.
तो दिस थिंग जब हम एक सिमिलर चीज के अंदर अगेन सिमिलर चीज भरते हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। कभी बताया क्या नेस्टिंग? नेस्टेड का मतलब कभी बताया क्या? नहीं बताया? मे बी आई माइट हैव शोड यू व्हाट दैट डॉल पिक्चर, दैट रशियन डॉल थिंग, राइट? राइट? हाँ, जब लूप्स पढ़ा रहा था तब आई टोल्ड यू। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो, आज के लिए स्ट्रिंग तक ही काफी है, असाइनमेंट्स और क्विज वगैरह भी स्ट्रिंग तक ही होंगे। जस्ट वी हैड अ बिट टाइम, तो आई वाज टेलिंग यू हम क्या करेंगे, फॉर लूप पकड़ेंगे और उसके अंदर फिर से एक फॉर लूप चलेंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो अभी नहीं, आज के लिए काफी हो गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट जाते जाते एक छोटी सी चीज बताओ। लेट्स से आई गिव यू अ प्रॉब्लम, ठीक? एंड आई एम नॉट गोना टीच यू गाइस डीएसए, बट मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको स्ट्रिंग एंड एरे। तो इन डीएसए वी हैव दीज फेमस प्रॉब्लम्स, इस तरीके के कुछ फेमस प्रॉब्लम होते हैं जिनको बोलते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग उसमें क्या होता है, लेट्स से कि आई टेल यू गाइस कि ऐसे कुछ पैटर्न प्रिंट करो। इसको नेक्स्ट टाइम करता हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक? अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ, क्या आप कर सकते हो इसको? या फिर मे बी थिंक इन दिस, कैन वी प्रिंट दैट पैटर्न? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फॉर दिस नेक्स्ट लेक्चर में ये भी करेंगे हम लोग, विल बी प्रिंटिंग दीज पैटर्न्स। ठीक? अभी नहीं करेंगे, इसके लिए दो लूप्स चाहिए होंगे। बट हाँ, मैं आई वाज जस्ट गिविंग यू आइडिया कि कैसे वी आर गोना डू ऑल दैट। स्लाइस एक्सप्लेन कर दो, आई मीन ओके स्लाइस क्या करना है स्लाइस को, बट एनीवेज लेट्स से, लेट्स से आई हैव अ array, right? And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक? अभी लेट्स से कि मुझे बीच में से कुछ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक? तो एनी आइडिया हाउ वी कैन डू इट? अभी तक हमने एरे में लीनियर तरीका सीखा था कि इधर वी कैन पुश एट लास्ट या फिर पॉप एट लास्ट। तो कैन वी रिमूव इट? नहीं, राइट? तो वी यूज अ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड स्प्लाइस। लेट्स गो ऑन एमडीएन, क्योंकि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर की सेकंड कंडीशन क्या लेता है, बट आई वाज सेविंग इट फॉर इनबिल्ट फंक्शन क्योंकि इसमें दो कंडीशन आती है। तो तो इधर यू कैन गो विद दिस वे, तो वी कैन गो विद var एंड array इक्वल्स टू array डॉट स्लाइस। और स्लाइस में हम क्या करेंगे कि लेट्स से मुझे सिर्फ इतना सा array चाहिए 3 4 5। तो विल राइट द स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 3 से चाहिए हमें। तो व्हाट्स द इंडेक्स? 2, राइट? विल पिक द सेकेंड इंडेक्स एंड कहाँ तक जाना था हमें, 5 तक प्रिंट करना है। व्हाट्स द इंडेक्स ऑफ फिफ्थ वन? 4, right? So let's pick 4. And if I do a console.log of an array, and if I do a clear index, we'll be getting just these two stuff, right? और अगर फिफ्थ भी चाहिए तो we'll go with that. Next index तक लिखेंगे, ठीक? We'll go with that. Again, फिर आप पूछोगे कि इसमें दो कंडीशन क्यों जा रही है, तो again that thing is कि I have to teach you functions for this first. So if you guys want to try this inbuilt function, you can do it. Please go on MDN and you can check it. But हाँ, एक बार मैं cover कर दूंगा inbuilt function, then I'll teach you कि how you use one more. There is a one more inbuilt function that is called splice. वो भी use करना बताऊंगा. But for now, that's fine. ठीक, जितना सीखा है that's fine.
तो एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर गाइस? आई मीन आई होप कि आज का लेक्चर काफी इजी रहा होगा, राइट? इट्स क्रिस्टल